Good morning, student. Today my topic name is reproduction in animals. Reproduction, the process by which an organism produces its offspring is called reproduction. Modes of reproductions. Reproductions के दो modes होते हैं, एक sexual और एक asexual reproduction. Sexual reproduction क्या होता है कि when two parents are involved in reproduction and gametes formation is necessary for reproduction. It is called sexual reproduction. Male gametes are produced by the male parents and female gametes are produced by the female parents. Fusion of male and female gametes is an important in this type of reproduction. Sexual reproduction क्या होती है कि इसमें जो होते हैं दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, एक मेल की एक दूसरी फीमेल की. मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं सेक्शुअल रिप्रोड्यूस करने के लिए. सेम ऐसे ही एनिमल्स के भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं अगर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करनी हो तो. इनकी डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या ऑर्गन्स होते हैं. सेम मनुष्य के शरीर में भी बहुत से ऑर्गन्स होते हैं जिनमें से कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. ये मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल के गैमेट्स के फ्यूजन का मतलब होता है मिलना. इसमें जो बेबी बॉर्न का जो प्रोसेस शुरू होता है उसे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. मेल गैमेट्स को स्पर्म भी बोला जाता है. इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं? द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट्स एंड पेनिस. Testes produce the male gametes which are called sperms. Structure of sperms. A sperm is very small in size, unicellular and is composed of a head, middle piece and a tail. इसमें नेक्स्ट हमारा आ जाएगा टेस्टिस. टेस्टिस, अ मैन हैज टू टेस्टिस. दीज आर ओवल इन शेप. They lie in a small muscular pouch called scrotum outside the abdominal cavity. The function of testes is to produce male gametes called sperms and also to produce the male sex hormone called testosterone. A coil tube-like structure called epididymis is firmly attached to the testes. The sperms are stored temporarily in epididymis. नेक्स्ट आ जाएगा हमारा स्पर्म डक्ट. द स्पर्म डक्ट, जो स्पर्म डक्ट है इसे वास्ट डिफरेंस भी बोला जाता है. स्पर्म डक्ट इज अ नैरो डक्ट विच स्टार्ट फ्रॉम द टेस्टिस एंड जॉइन द यूरेथ्रा. इट कैरी स्पर्म्स टू द यूरेथ्रा बाय द मस्कुलर action of its wall. Fluid produced by the seminal vesicles mixes with the sperms to the produce semen. This fluid provides nourishment to the sperms. जो मेल गैमेट्स है इसको स्पर्म बोला जाता है और एक मेल की बॉडी से बहुत सारे लाखों की मात्रा में स्पर्म्स निकलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा यूरेथ्रा. इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब दैट अराइजेस फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू कैरी यूरिन. Urethra carries urine from the bladder as well as semen from the sperm duct through the penis. नेक्स्ट हमारा जाएगा पेनिस. पेनिस इज अ लॉन्ग एंड थिक मस्कुलर ऑर्गन. इट इंजेक्ट्स द स्पर्म्स इनटू विजाइना ऑफ द फीमेल बॉडी. अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में. द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स, जिसे फैलोपियन ट्यूब्स भी बोला जाता है. यूट्रस एंड विजाइना. द फीमेल गैमेट्स एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज. ओवरीज फर्स्ट जो हमारा आ जाएगा ओवरीज. अ वुमेन हैज टू ओवरीज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी just below the kidneys. The function of ovaries is to make the female gametes called ova or eggs. इसे जिसे कि eggs या ova बोला जाता है. And also to secrete the female sex hormones called estrogen and progesterone. Ovaries are attached to the uterus by a fibrous cord called ovarian ligament. नेक्स्ट हमारा आएगा फिलोपियन ट्यूब्स, जिसे ओविडक्ट्स भी बोला जाता है. Oviduct is a thin and coiled muscular tube with a funnel-shaped opening near the ovaries. It joins uterus to the ovary. The ovum egg cell released by an ovary goes into the fallopian tube through its funnel-shaped opening. The fertilization of egg zygote into a baby takes place in the uterus. Vagina. Next हमारा आएगा vagina. The uterus open into a wide muscular tube called vagina, which opens to the outside of the body. In females, vaginal opening and urinary opening are separate, unlike males. Female reproductive organs में क्या होता है कि इसमें जो होता है
कि इसमें जो होता है कि फीमेल गैमेट्स को ओवा या एग्स कहती हैं। फीमेल बॉडी में हर महीने ओविडक्ट में एक एग रिलीज होता है। दो ओवरिस में से किसी में से भी एक एग जो है वो रिलीज होता है। ओविडक्ट का ही दूसरा नाम है फ्लोपियन ट्यूब। बच्चा यूट्रस में पलता है। स्पर्म जो होता है वो सिंगल सेल होता है, इसी तरह एग भी सिंगल ही होता है। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट्स विद अ फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड fertilization. During fertilization, fusion of nuclei of sperm and egg takes place. Zygote is formed after fertilization. बेबी की जो पहली फॉर्म होती है उसको जाइगोट बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि ओवम को हम एग कहते हैं। बच्चे के पैदा होने के पहले प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। स्पर्म मेल की बॉडी से निकलकर फीमेल की बॉडी में जाता है और वहाँ एग से मिलता है, तब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। स्पर्म्स तो मिलियन होते हैं बट जो एग है वो एक ही होता है। अब मिलियन में से कोई एक स्पर्म एग से मिलकर फ्यूज हो जाता है, इस कहा जाता है। ठीक है, इस फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। पहले एग का अपना न्यूक्लियाई था, स्पर्म का अपना न्यूक्लियाई था। जब दोनों मिले तो एक सिंगल न्यूक्लियस बन गया। जब एक न्यूक्लियस बन जाता है तो उसे जाइगोट कहा जाता है। इस प्रोसेस में एग फर्टिलाइज हो गया होता है और इसे जाइगोट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है मेंस्ट्रुएशन। If the ovum is not fertilized by the sperm, it is expelled from the vagina along with some musculus and blood. This is known as menstruation. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में क्या है? जेस्टेशन होता है, एम्ब्रियो होता है और फीटस होता है। तो जेस्टेशन में हम देखेंगे कि द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। द जेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन इज ऑफ 40 वीक्स। नेक्स्ट हमारा है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो होता है कि जो जाइगोट का जो बच्चा है वो एम्ब्रियो ही बनता है। तो आफ्टर कंसेप्शन द वॉल ऑफ सेल्स अंडरगोज फर्दर राउंड्स ऑफ सेल डिविजन्स। ड्यूरिंग द प्रोसेस द सेल्स बिगिन टू डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू लेवल स्टेज आफ्टर कंसेप्शन इज कॉल्ड एम्ब्रियो। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा फीटस। When the embryo begins to resemble a human being, it is called a fetus. At this stage, various external organs like a legs, head, ear, eyes, etc. जो ये एम्ब्रियो होते हैं, जाइगोट के बाद जो बच्चा है वो एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट खुद को डिवाइड करता जाता है, बॉल्स की तरह ये बनता जाता है। जाइगोट जो होता है एक छोटा सा सेल होता है जो बहुत से टुकड़ों में बंटता जाता है। किसी के हाथ बनते हैं, किसी के पैर, फिर आपस में जुड़ते जाते हैं। फिर एम्ब्रियो जो होता है यूट्रस में चला जाता है। जब एम्ब्रियो में बॉडी पार्ट्स बन रहे हैं तब सब पार्ट्स जब उसके रेडी हो जाते हैं और उसे हमें वो अच्छे से क्लियर दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे हाथ, पैर, आँख, कान सब दिखने लग जाएं तो उसे फीटस कहते हैं। जब फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तब मदर उसे जन्म देने के लायक हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जो है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब इस पिक्चर में आप देखिए कि इसमें बेबी कैसे, मतलब कि बेबी के इसमें आपको सब पार्ट्स दिख रहे हैं, हाथ, पैर, आँख, कान, सब ये सब जो है ये फीटस का डेवलपमेंट इसमें कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में क्या है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या होता है कि व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द एनिमल्स बॉडी, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मोस्ट ऑफ द aquatic एनिमल शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल के लिए फिश एंड फ्रॉग, ये इनका जो ये प्रोसेस है ये बाहर होता है, इसलिए इन्हें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स नीड टू बी fertilized in this method because most of the fertilized eggs get washed away by water or are eaten by predators. Large number of eggs ensure survival of some of the offspring. Second हमारा आ जाएगा internal fertilization. When fertilization takes place inside the animal's body, it is called internal fertilization. Internal fertilization is seen in most of the terrestrial animals. Unlike external fertilization, there is no need to produce a large number of eggs in internal fertilization. Example birds, reptiles and insects. Next हमारा आ जाएगा
कंसेप्शन एंड चाइल्ड बर्थ. कंसेप्शन एंड चाइल्ड बर्थ में क्या होता है? इट टेक्स प्लेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्रू फॉलोइंग स्टेप्स. अ सिंगल एग A single egg comes out of the ovary every month and reach the fallopian tube. Next, second, sperms reach the fallopian tube where a sperm fertilize the egg. This results in formation of zygote. Zygote undergoes several rounds of cell division to become a ball of cells. This ball of cells move to the uterus and get implanted in the wall of the uterus. The process is called conception. Conception marks the beginning of pregnancy. एम्ब्रियो डिवेल्प्स इनसाइड द यूट्रस टू बिकम अ बेबी. नेक्स्ट हमारा आएगा आईबीएफ. आईबीएफ में हमारा पढ़ेंगे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस carried out in laboratory is called in vitro. Thus fertilization carried out in laboratory is called in vitro fertilization. After in vitro fertilization, zygote is allowed to develop into a mass of cells and is then transferred into the uterus for subsequent development. Many women may fail to conceive due to certain problems. In vitro fertilization helps such a woman to bear a child. A baby which is born with the help of this technique is often called a test tube baby. अब इसमें जो बेबी बोर्न होता है उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोला तो जाता है, बट उसका मतलब ये नहीं होता कि वो टेस्ट ट्यूब में ही बन के निकला है. टेस्ट ट्यूब में उसको कुछ टाइम के लिए रखा जाता है. जब वो उसका एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसे फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं. नेक्स्ट हमारा आएगा डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ एग शेल्स इन हैन. अब हम इसमें पढ़ेंगे कि हम जानते हैं कि वी नो डैट द बर्ड्स एंड मैनी अदर एनिमल्स ले एग. हम सबको पता है कि बर्ड्स और एनिमल्स जो होते हैं कई एग देते हैं. एग्स ऑफ दीज एनिमल्स हैव अ टफ शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. व्हेन जाइगोट ट्रेवल्स डाउन द fallopian tubes, it undergoes several rounds of cell division. Many protective layers are formed around the zygote during this process. These layers subsequently develop into the hard shell of egg. The hen lays an egg only when the shell is completely formed. The embryo inside the egg of a hen takes about 3 weeks to develop into a chick. The hen sits on the eggs to provide sufficient warmth. This called incubation. When the chick is completely developed, it bursts open the egg shell. This is called hatching. जब एक होता है एग का मतलब कि इसमें हैन क्या करती है कि एग को एक मतलब कि गर्माहट चाहिए होती है तो वो उसके ऊपर बैठी रहती है कुछ टाइम तक, तो इसे इंक्यूबेशन कहा जाता है. और जब वो एक प्रॉपर चीक जो होता है कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है तो एग हैच हो जाता है. तो उसमें से एक छोटा सा जैसे निकलता है, छोटा सा मुर्गी का बच्चा निकलता है. जो सिमिलरली यंग वंस इन ऑफ इंसेक्ट, रेप्टाइल्स एंड अदर बर्ड्स हैच फ्रॉम एग्स. जो उसकी तरह जैसे ही लगता है और वो बाहर आके धीरे धीरे बड़े होने का प्रोसेस उसका शुरू हो जाता है. बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू ले एग्स और टू गिव बर्थ टू यंग वंस, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. एक उनको बोला जाता है ओविपेरस और दूसरा विविपेरस. ओविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं कि एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स. एग्जाम्पल बर्ड्स, मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स जो कि अंडे देते हैं. नेक्स्ट हमारा आ जाएगा विविपेरस एनिमल्स. विविपेरस एनिमल्स जो कि विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स. एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड सम फिश. मैमल्स वो प्राणी होते हैं जो स्तनधारी होते हैं. नेक्स्ट हमारा आएगा यंग वंस टू अडल्ट. यंग वंस टू एडल्ट में हमारा है डायरेक्ट डेवलपमेंट. व्हेन द यंग वंस of an animal resemble the adult, then direct development takes place. Example hen, man, monkey, etc. Indirect development में क्या होता है कि when the young ones of an animal do not resemble the adult, then indirect development take place. Example frog, butterfly, silk moth, etc. थर्ड हमारा आएगा मेटामॉर्फोसिस. इसमें क्या होता है कि इन केस ऑफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यंग वंस इनटू एडल्ट इज कॉल्ड metamorphosis. Larva of butterfly undergoes metamorphosis to become a butterfly. A tadpole undergoes metamorphosis to become a frog. इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि the transformation of the larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. The life cycle of a frog.
Metamorphosis is a biological process in which a frog physically develops from a small tadpole into an adult frog. अब इसमें जो फ्रॉग होते हैं इसकी 4 स्टेजेस होती हैं. एग्स, द फीमेल फ्रॉग लेज 1000 ऑफ एग्स इन द वाटर विच इन टर्न गेट्स फर्टिलाइज्ड एंड हैच इनटू टैडपोल. सेकंड स्टेज होती है टैडपोल. द टैडपोल इज द सेकंड फेज ऑफ अ फ्रॉग्स लाइफ साइकिल. द टैडपोल डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक अ फ्रॉग बट रेदर लाइक अ फिश. जो टेडपोल की उसकी स्टेज होती है इसमें वो फ्रॉग की तरह नहीं दिखता है, उल्टा वो एक फिश की तरह दिखता है. उसकी एक पूंछ दिख रही होती है, वो फिश की तरह ही गिल्स से सांस लेने की कोशिश करता है और उन्हीं की तरह मूव्स करता है. इट ऑल्सो बिगिन्स टू डिवेल्प लंग्स एट दिस स्टेज विच एनेबल्स दैम टू ब्रीथ आउट ऑफ वाटर व्हेन इट बिकम्स अ फ्रॉग. नेक्स्ट हमारा आ जाएगा फ्रॉगलेट. फ्रॉगलेट क्या होता है? द थर्ड स्टेज इज फ्रॉगलेट. एट दिस स्टेज इट लुक्स लाइक अ यंग फ्रॉग. जो लास्ट फोर्थ स्टेज होती है वो हमारी फ्रॉग की होती है, जिसमें देखो ध्यान से देखो अब इसमें प्रॉपर ये पूरा फ्रॉग बन गया एक बड़े फ्रॉग की तरह. द अडल्ट फ्रॉग इज द फोर्थ एंड फाइनल स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. नाउ इट इज परफेक्टली फिट टू लीव द वाटर एंड लिव ऑन द लैंड. Its tail disappear completely and it starts feeding on insect instead of grains. अब इसमें देखो फ्रॉग को ध्यान से, अब इसकी पूंछ भी नहीं है और ये एक बड़े अडल्ट फ्रॉग की तरह दिखना शुरू हो जाता है. नेक्स्ट हमारा आ जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी हमने पहले पढ़ा था ना कि रिप्रोडक्शन के 2 मोड्स होते हैं, एक सेक्सुअल और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल के बारे में आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. अब हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है कि व्हेन अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन अ रिप्रोडक्शन एंड गैमेट्स फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस, इट इज़ कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स होता है. जैसे मतलब कि ये जो इतने छोटे छोटे वो इनके जो हैं वो मतलब कि उनको माइक्रोस्कोप से देखने की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि हाइड्रा में होता है, अमीबा में होता है. इनके जो मतलब जो इनके आगे छोटे छोटे वो निकलते हैं, इन सबको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं. अब जैसे आ जाता है इसके भी आगे 2 टाइप्स होते हैं. जैसे बाइनरी फ्यूजन. बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि दिस मेथड इज seen in unicellular animals. Example amoeba. The cell of amoeba. The binary fission में जो होता है, बाइनरी फ्यूजन में देखो बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि दिस मेथड इज सीन इन यूनिसेलुलर एनिमल्स. एग्जाम्पल अमीबा. अमीबा, द सेल ऑफ अमीबा डिवाइडेड इंटू 2 डॉटर सेल्स. ईच डॉटर सेल्स बिकम अ न्यू इंडिविजुअल. जो इसमें बाइनरी फ्यूजन में ये बताया गया कि जो अमीबा है उसमें एक ही सेल होता है. पहले एक जैसे होता है, बाद में ये 2 में डिवाइड हो जाता है. इसे इसलिए बाइनरी फ्यूजन कहते हैं. बाइनरी मतलब होता है 2 और फ्यूजन मतलब होता है टूटना. अमीबा का जो ये प्रोसेस होता है इसे बाइनरी फ्यूजन के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट हमारा आ जाएगा बर्डिंग. नेक्स्ट बर्डिंग में क्या करेंगे? दिस मैथड इज सीन इन multicellular animals which are highly simple in structure. A small bird develops on the body. The bird develops and starts resembling its mother. After that, the bird gets detached from the mother's body to begin life as a new individual. Example hydra and sponge. हाइड्रा जो होता है, जैसे हाइड्रा जो है इसके भी जो ये बर्ड्स वगैरह निकलते हैं इनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. इसमें क्या होता है कि हाइड्रा में जैसे बर्ड निकलते हैं, ये बर्ड सेम टू सेम अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं. ये ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट्स होता है. आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा होगा कि एक फीमेल का गैमेट्स और मेल का गैमेट्स मिलता है, तो उन दोनों के बच्चे जो बच्चा प्रोड्यूस होता है उस बच्चे के फीचर्स अपने दोनों पेरेंट्स के ऊपर जा सकते हैं. मदर की तरह भी वो दिख सकता है, फादर की तरह भी दिख सकता है. बट इसमें क्या होता है कि इसमें जब पेरेंट्स ही एक है तो वो सेम अपने उसी पेरेंट्स की तरह ही दिखेगा. अब बर्डिंग इन हाइड्रा में जैसे होता है कि कोई भी चीज़ जो बाहर से निकली होती है जिस उसे बल्ज कहते हैं. आप उसको देखिए ज़रा ध्यान से कि इसमें मतलब इसमें इसके देखो छोटे छोटे जैसे बाहर ये निकल रहे हैं, इनमें मतलब इनको बर्ड बोला जाता है. और मान लो जैसे हमें चोट लगती है, हमारे यहाँ पे गुमड़ा सा पड़ जाता है, तो ऐसे ही इनके जो ये पार्ट्स बाहर निकलते हैं इनको बल्ज बोला जाता है. तो इसमें एक ही इंडिविजुअल निकल रहा होता है, इसे इसलिए बर्डिंग कहते हैं. अब नेक्स्ट हमारा आ जाएगा
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहीं पर ही ख़त्म नहीं होता है, इसके और भी टाइप्स हैं। इसमें एक टाइप आ जाता है हमारा क्लोनिंग का। क्लोनिंग का क्या होता है कि क्लोनिंग मतलब बिल्कुल एक जैसा ही दिखने वाली चीज़ को क्लोनिंग बोला जाता है। व्हेन अ न्यू सेल और अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और द होल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ cell. It is called cloning. A sheep was the first mammal to be cloned. It was named as Dolly. Ian Wilmot and his colleagues at Roslin Institute in Edinburgh, जो कि स्कॉटलैंड में है, cloned Dolly in 1996. For this, scientists took a cell from mammary gland from a sheep. They removed the nucleus of the egg and replaced it with nucleus of the cell from मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड मतलब मैमरी वो होते हैं, स्तनधारियों को बोला जाता है। आफ्टर डैट द एग वॉज ट्रांसप्लांटेड इनटू द यूट्रस ऑफ शीप। द एग सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड इनटू द क्लोन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। वो फिर क्या जैसा जो इसमें शीप का इस्तेमाल किया गया था, उसका उस क्लोन को डोली उसका नाम रखा गया था। अब आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। Please like, share and subscribe it.